lecture. Slide is visible. Do you see slide? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. So I think we are here. We completed the classification of ligands, and come to the next point is here is what is the coordination? What is the coordination? Okay. So we are here, and from the today's lecture, we are going to be learn about the different terminologies that are very helpful to study the coordination compound. So when an orbital from a ligand with a lone pair in its overlap with the empty orbital from the metal. So simply as I told to you the definition of coordination compound, there is a mixing of mixing means simply there is an interaction in between to the ligand and metal, and it forms the metal and ligand bonding. So this is called as to be the coordination bond. Okay, so simply from the last lecture, we are studying with a different example, what are the coordination compound. So I'm not focus on this again, okay, because you understand what is the meaning of coordination compound. But simply you always keep in your mind when you listen the word of coordination compound, so you have to be visualize this bonding. ML bonding is there. Okay, so M is bond with the ligand, that is the ML bonding. And this bonding is a coordinated type of bonding, and as per this definition is given here, this ligand give the electron to the metal, okay, through this bonding, and from the metal ligand bonding is the coordination bond is there. So that arrow end indicate the movement of electron from ligand to metal. So this is the simply we can be defined to the coordination compound. Okay, so ligand must have a lone pair of electron. Always keep in your mind, ligand is an electron donor, okay, and it may be donate their electron from the in the form of lone pair, or it may be donate the electron in the form of the negative charge. Okay, so these are the two entities are very much important in the coordination compound. Central metal ion present in the center of the complex. So this is the central metal ion, and second is the ligand. That ligand donate the electron to the vacant orbital of the metal. Okay, so this is the simply bonding you can be see in the coordination compound. Then next concept is the coordination number. Okay, this is very much important when you are going to study the different properties and the structure of the coordination compound. So it is most important to know about the coordination number. Okay, so let me see what is the meaning of the coordination number. So there is very simply we can be defined to the coordination number, that is the number of ligand coordinated to the central metal ion called as a coordination number. Okay, then simply you can see here there is this is the complex FeCN by 6 4 negative. This is the hexacyanoferrite complex is there. Okay, and in this complex you can see there are the 6 number of ligand. Okay, that is the CN by 6. Okay, so CN is a ligand, as I told to you, and we all discussed in the classification of the ligand. So different type of ligand, and there is a cyno. This is CN. CN is one of the ligand. Okay, so this is your monodentate ligand is there. Okay, and their number is 6. Okay, means if you see this complex FeCN by 6 4 negative, so there is a 6 cyno ligand present in this complex. Means number of ligand is a 6. So we can say here this the coordination number of this complex is a 6. Okay, this is the 6. CN, this coordination number is a 6. Okay, so simply you can see here there is the number of ligand. Okay, 6 number of ligand in this complex. So coordination number is a 6. So this coordination number, if you see the different type of complexes, so then you will be observed there are 3 to 9 ligand found in the complexes. Okay, and it is a different type of complexes. But basically, if you study this complexes, then you will be see there is a maximum complexes they are found with the 4 and 6 coordination number. Okay, मतलब ज्यादातर जो लिगैंड हमें देखने को मिलते हैं उस लिगैंड में
6 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, मतलब नंबर ऑफ लिगैंड जो होते हैं, इसी तरह के कॉम्प्लेक्स हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट अगर हम वैसे देखें तो 3 to 9 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट वाले कॉम्प्लेक्स हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वेरिएशन होता है, 3 to 9 मतलब अलग अलग टाइप के हमें कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं, बट उसमें अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो फाउंड होते हैं तो वो 6 and 4 कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्सेस वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। So my dear student, here we have to be understand this number of ligand in the complex. Number of ligand. It may be 3, it may be 9. Okay, and it may be the vary in between to the 3 and 9. Okay, so due to the number of ligand it changes. So different structure complex it will be show. Their property it will be changed. Their electronic spectra it will be changed. So that means simply you can understand here. Number of ligand is very much important in the complex, okay, because the geometry is depend on the number of coordination number. The magnetic properties also different, and so many different property of the ligand it related with the number of ligands. Okay, so this is the coordination number, and there are example we can see here. There is a FeCN by 6, then NiNH3 by 4 to positive. Okay, tetra amine nickel. This is the complex. Okay, and in this complex we can see here there is a 4NH3 molecule. Okay, and as per I told you, the class of ligand is a anionic ligand, neutral ligand, then cationic ligand. Okay, so the cyano there is a CN negative. So this is the anionic type of ligand. This is the cyano because it contains the negative charge. So cyano is the anionic type of ligand, and there are number is a 6. Okay, and similarly in this complex there is a nickel is a center metal ion, and amine NH3, this is the ligand, and NH3 is a neutral molecule. So we can say this NH3 is a neutral ligand. Okay, NH3 is a neutral ligand, and you can see here their number of the NH3 means amine molecule is a 4. So 4 ligand is present in this complex, so their coordination number is 4. Okay, this is very simple. The next complex is the target complex that I already told you, and this complex there is a cobalt is a central metal ion. Along with this cobalt there is a ligand, one is NH3 molecule and second one is a Cl. Okay, this is a chloride. This is simply chloro ligand is there. Means you can observe in this complex there are two type of ligand is there. One is amine, this is the neutral molecule is there, and second one is the chloride, means there is a Cl negative. So this is the anionic type of ligand. Okay, one is a neutral ligand and one is the anionic type of ligand. Two different type of ligand present in the same complex. Okay, but their number additionally or summationally we have to be considered as a coordination number. Okay, so in this complex there are 4 amine molecule and 2 chlorine ion. So that's why there are 6 number of ligand present in the complex. So their coordination number is a 6. So we can see here there is a coordination number of this complex is a 6. ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है. तो ये जो होता है इट इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, द नेक्स्ट इज द coordination number. We can be understand from the geometry of the complex. So we can see here there are different complex structure is there. Okay, so there is first structure, there is a zinc in the center metal ion at the center of the complex. So it is a center metal ion, and here we can see there are 4 amine molecules. These are the neutral ligand bonding with this center metal ion. Okay, so we can see these 4 ligands, they are arranged in the 4 corner of tetrahedral structure. So we can say this is the tetrahedral geometry shown by this complex. ठीक है, मैंने कहा है आपको कि सेंट्रल में इस कॉम्प्लेक्स में जो है कि जिंक जो सेंट्रल में प्रेजेंट है, और उस जिंक को जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसके बने हैं लिगैंड के साथ में, तो लिगैंड वहां पे NH3 है ना. तो ये NH3 जो है यहाँ पे लिगैंड, तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखते हो यहाँ पे, so you can see here there is a tetrahedral structure shown by this complex. Okay, तो यहाँ पे 4 लिगैंड है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ना.
बेसिकली क्या होता है, देयर आर 4 and 6 coordination complexes. It shows the octahedral, tetrahedral, or maybe the square planar geometry. Okay, if there is a six number of ligand or 6 coordination number, so in that case this complex, it gives octahedral structure. It gives octahedral structure, means you can see here there is a cobalt at the center. Okay, and you can see there is a 6 amine molecule is there. This is the 6 amine molecule, and they all are present in the octahedral. They arrange in the octahedral position. Okay, so you can see this is the octahedral geometry shown by this complex, cobalt complex. Then simply here also given there, this is the octahedral geometry for the cobalt Na3/6. So this thing is happen when the coordination number, means number of ligand, is a 6. Okay, so 6 number of ligand is there, 6 coordination number is there, so it gives octahedral geometry. That is very simple. Okay, and then second is there are, if there is a 4 number of ligand, there is a 4 number of ligand, so there are 2 type of geometries possible. Okay, one is a tetrahedral geometry. Here we can see there is a Zn NH3/4. So this is the tetrahedral geometry. Okay, and now you can see here there is a platinum and NH3/4 also. Okay, so it gives the geometry is a square planar geometry. Is a square planar geometry. Okay, square planar. So both जो लिगैंड कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4 लिगैंड है, यहाँ पे भी 4 लिगैंड है, बट यहाँ पे जो उसकी ज्योमेट्री है वो अलग अलग टाइप की होती है ना. तो हम कह सकते हैं कि if there is a 4 coordination number, so there are possibility of 2 type of structure or 2 type of geometry of this complex. One is tetrahedral and one it may be the square planar. Okay, not every time complexes give the both type of geometry, है ना. मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हर कॉम्प्लेक्स 2 टाइप की ज्योमेट्री दे सकता है, ऐसा नहीं होता है. टेट्राहेड्रल नहीं तो स्क्वायर प्लानर, ऐसा नहीं होता. कोई भी एक ही ज्योमेट्री शो करता है ना. मतलब Zn NH3/4 अगर है तो ये टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री शो करेगा. ठीक है, और जो यहाँ पे प्लैटिनम का अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेगा. तो ये बाकी की जो ज्योमेट्री होती है अदर फैक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मेटल आयन के प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो ये सारी चीज उसमें इंटरफेयर करती है, इन्फ्लुएंस करती है उसकी ज्योमेट्री पे. तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट कुछ पार्ट में पढ़ेंगे. बट नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड coordination number, means number of ligand present in the complex, and that number of ligand present in the complex and coordination number decide the geometry of the complex. Okay, means if there is a 6 coordination number, so geometry is octahedral. If there is a 4 coordination number, so it gives maybe the tetrahedral or square planar geometry. Okay, so this is the coordination number. Okay, the atom that supplies the lone pair of electrons to the metal ligand bond is the donor. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल है, ये देखा है हमने. ठीक है, पर यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना है. Then number of this atom is the coordination number. ठीक है. Then some metal such as chromium and cobalt consistently have the same coordination number 6 in the case of these 2 metal. Okay, cobalt हो या chromium हो, ये हमेशा 6 coordination complex वहां पे फॉर्म करते हैं. तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना. The most commonly encountered number as 4 and 6. मतलब हमने कहा है कि ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं they are the 4 or 6 coordinating complexes. Then geometry. Okay, there are 2 common geometries for metal with a coordination number is 4, है ना. मतलब 4 coordination number होता है तो 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है. ये हमने कहा है पहले, जो अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लानर हो सकती है. अगर जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे तो ये तो हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा.
अब ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों देता है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड होता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बाद में हम पढ़ेंगे इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, in detail we will study about the hybridization, and from the hybridization you will be see there different type of geometry shown by the complexes. But now here we are studying about the coordination number. So we are correlate this coordination number with the geometry. Okay, the number of coordination number of ligand, how it correlate with the different geometry shown. If there is a 4 coordination number, so it gives a tetrahedral or maybe the square planar geometry. So that all depend upon the hybridization that will be discussed into the next some slide. By square planar, we will get that. By far the must encounter geometry when the coordination number is 6 is octahedral, है ना। octahedral है तो हमें वहां पे 6 coordination number है तो octahedral geometry देखने को मिलती है। ठीक है, मेटल लिगैंड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेटल लिगैंड बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू द लेविस एसिड एंड लेविस बेसेस, द लिगैंड लेविस बेस। ओके, लिगैंड जो होता है अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, है ना, हमने कहा है कि लिगैंड जो स्पीशीज होती है ये एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक वहां पे होगा, और ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या negative charge, it donate to the central metal ion, means their work is donate the electron to the metal ion. Okay, and we know that the definition of the Lewis basis according to the Lewis theory, we know that the lone pair of electron donor species is known as to be the Lewis base. ओके, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लिगैंड है, लिगैंड के पास में एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नहीं तो नेगेटिव चार्ज वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल आयन को। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज टू बी द लेविस बेसिस। ओके, और सेकंड साइड में इफ यू ऑब्जर्व देयर इज द मेटल आयन दैट इज M positive. Okay, metal ion means M positive because it gives the it is an electropositive element and that's why it forms the positive charge. Okay, अब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल वहां पे होती है ना, वैकेंट होती है मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगैंड। ओके, तो ये क्या हुआ, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसे हम कहेंगे लेविस एसिड। ठीक है, तो इस तरह का जो है मेटल और लिगैंड बॉन्ड जो भी बन रहा है वहां पे एक तो लेविस बेसिस होते हैं जिसे हम लिगैंड कहते हैं, और दूसरा लेविस एसिड होता है जो कि मेटल आयन होता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो Ag जो है मतलब सिल्वर, और सिल्वर के साथ में हमने क्या किया, अमोनिया की रिएक्शन की, एक्वेस में ही है ना, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सिल्वर, सिल्वर या सिल्वर तो खाली नहीं होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट में फॉर्म में होगा वहां पे, तो सिल्वर नाइट्रेट होगा, तो Ag पॉजिटिव वहां पे हमें आयन मिलता है। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि अमोनिया को डिसॉल्व किया, वो तो एक्वायस फॉर्म में ही होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो अमोनिया, और इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमें इस तरह का यहाँ पे एक मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिखता है, और ये मॉलिक्यूल बना देता है जो कि यहाँ पे दो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये इसका जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। तो ये इस तरह से मेटल लिगैंड बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। और एक चीज इसमें है कि ये जो मेटल जो है, मेटल कोऑर्डिनेशन लिगैंड एंड ज्योमेट्री कैन ग्रेटली अल्टर द प्रॉपर्टी, है ना, मतलब जो इसका जो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग है उसकी ज्योमेट्री है ना, नंबर ऑफ, अब ज्योमेट्री तो डिपेंड होती है नंबर ऑफ लिगैंड पे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्री जो है तो और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, तो ये दो चीजें जो होती है ये कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको रिलेट, इसको क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं उस पे, है ना, मतलब उसको अल्टर करते हैं, अल्टर यानी कि चेंज कर देते हैं। जिस तरह से ये ज्योमेट्री बदलेगी, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा, मेटल आयन बदलेगा या लिगैंड बदलेगा, तो वहां पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होते हुए हमें वहां पे देखने को मिलती है। This is very simply you can be visualize here. There are two beaker. You can see here there is the two different complexes. So in one complex you will see there is the yellowish color solution is there, and in second case there is a reddish color. Okay, means color it will be changed. The oxidation it will be changed.
Okay, oxidation number it will be changed. So the different property it will be changed, and that all we will be discussing to the some next slide. Okay, but here you have to be understand number of ligand in the complex is the coordination number, and coordination number it correlate with the geometry. If there is a 6 ligand, 6 coordination number, so it gives the octahedral geometry. If there is a 4 coordination number, it gives the tetrahedral, or maybe it gives the square planar geometry. That all depend upon the hybridization, and hybridization is depend upon the electronic configuration of the central metal ion. Okay, and then this coordination number it's related to the geometry, and the geometry it's related to the different property of the complexes. And if the geometry it will be changed, coordination number it will be changed, so the different property of the complexes it will be changed. Okay, और वो properties कौन सी होती है, तो उसमें कलर, अलग अलग तरह का कलर बन सकता है। अब कलर कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है ना, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। और ये जो कलर हम देख रहे हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इसका एक तरह से हमें वहां पे देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, जैसे कि कलर, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, देन अनदर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है, कोई डायमैग्नेटिक होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहेंगे हम इसको। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ये रिलेटेड होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से और ज्योमेट्री से। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर को अब स्टडी करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि क्या होता है कि कोई भी मेटल आयन पे जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पे, है ना। ऑक्सीडेशन कैसे होता है हम उसको और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन होने के बाद जितने नंबर ऑफ चार्जेज वहां पे देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेटल जो होता है, मेटल इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। Okay, so for example, if metal donate the 1 electron, so it form the one positive charge, so it is a +1 oxidation state is there, +1 oxidation number is there. Okay, so similarly the number of electron loosed by this metal ion, it form equal number of positive charge on itself. Okay, so this is the simply you can be defined to the oxidation number. Okay, so knowing the charge on the complex ion and the charge on each ligand, one can determine the oxidation number for the metal. अब ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर को स्टडी करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट as per coordination chemistry concern. This is very much important to understand the oxidation number, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, अपनी अपनी ट्रिक होती है ना। बट जो मुझे लगता है कि हमें एक मतलब जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद इजीली हमें पता होना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें उसको डिटरमाइन करने को आना चाहिए कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल का वो क्या होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर मेटल का डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। वो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पता होना चाहिए हमें मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स में जो होता है, तो ये क्यों होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है मेटल आयन की, तब आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है उस मेटल आयन में, ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह से है, ये अगर आपको समझ में आता है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, है कि नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अगर आपको समझती है तो आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, देखो अब किस तरह से निकालनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेटल आयन अगर हम देखते हैं तो मेटल आयन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेटल पे जो चार्ज होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज होती है ना मेटल। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इट गिव्स इलेक्ट्रॉन, इट लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसकी एबिलिटी होने की वजह से वो जो मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और लूज करने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पॉजिटिव, तो हमें यही निकालना है कि ये जो n है यहाँ पे, दिस इज n, ओके, दैट n, हाउ मच नंबर ऑफ दिस n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर आपको आपने सेकंड ईयर में स्पिन ओनली फॉर्मूला अगर देखा होगा, द स्पिन ओनली फॉर्मूला that is it is used to determine the magnetic moment of the metal ion और कोई भी मेटल की। तो इसमें जो हम n उसमें यूज होता है, अगर आपको पता होगा तो म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। बोर मैग्नेटॉन उसका यूनिट होता है। तो उसमें जो n होता है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, जब आपको उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा तब, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने ये लिया Fe, ठीक है। अब Fe का हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी होगी, तो हमें उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब पता चलेंगे, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कितने इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। अब समझो आपको पता चल गया कि इसने इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना, लॉस किया, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे हम, इसका एटॉमिक नंबर था 26, ठीक है। अब 26 में से उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब कितना हुआ, 24 हुआ, ओके। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन को आपको उसको कंसीडर करना है, ठीक है, इसको अरेंज करना है और देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसलिए ये ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो एक एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे और इससे समझ ले हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन हम कर सकते हैं। Okay, that is very simple technique I given here. Okay, so you can use it for the determination of oxidation number. Okay, so here you see there is the copper and Na3/4 and 2 positive. Okay, तो देखो अब यहाँ पे ये जो +2 नंबर है ये हमें निकालना है, +2, ठीक है। अब दूसरी इसमें A+2 हमें निकालना, अभी यहाँ पे तो पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पे +2 है और बाकी की सारी चीजें, बट अगर हमें पता नहीं होता तो हम किस तरह से डिटरमाइन करते, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो ये +2 जो है ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस मेटल आयन, जो कि हमें डिटरमाइन करना होता है, हमें पता करना होता है बाकी की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो NH3 है लिगैंड, ये होता है यहाँ पे 4 क्वांटिटी में है, तो ये यहाँ पे 4 जो है ये है नंबर ऑफ लिगैंड, 4 इज द नंबर ऑफ लिगैंड, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के भी लिगैंड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी लिगैंड हो सकते हैं, बट सबका नंबर यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज जो ब्रैकेट में आप 0 देख रहे हो, द 0 फॉर द चार्ज ऑन द लिगैंड। अब लिगैंड पे चार्ज कौन सा है, एनीबडी कैन यू टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस NH3। तो NH3 जो है, तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है, बिकॉज दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, है ना। तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है तो वहां पे 0 हमने वहां पे चार्ज कंसिडर किया, तो ये 0 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 0 और उसके बाद में यहाँ पे देखो ये जो है इज इक्वल टू के आगे जो भी हमें दिख रहा है, ये जो +2 है, दिस इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, दिस इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें समझना है
कि ये पूरा कैलकुलेशन जो करेंगे हम, है ना, तो इसमें से हमें ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरी टेक्निक होती है जो हम मैंने मतलब खुद स्टडी करके फास्टली हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये नया कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, यह है FeNH3/6 और आगे जो दिया हुआ है वो है 2 पॉजिटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो इसको हम डिटरमाइन करते हैं। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, मोस्टली फाउंड होती है, वो होती है Fe+2 और Fe+3। ठीक है, एक होता है फेरस जो कि Fe2 पॉजिटिव और जो Fe3 पॉजिटिव होता है दैट इज टू बी द फेरिक। ठीक है, तो देखो किस तरह से, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है जो +2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पूरा हमारा इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। एक्स होता है जो कि हम इसको डिटरमाइन करेंगे, एक्स लोग कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, इनटू यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो है 6। ठीक है, और उसका चार्ज जो है वो है 0। ठीक है, इस तरह से, और इज इक्वल टू जो है वो है +2। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो 6 इंटू ये तो 0 हुआ, तो ये टोटल टर्म 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, +2 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया +2। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे हमें +2 Fe जो है देखने को मिलता है ना। इस तरह से जो है Fe की हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक एग्जांपल और लिया तो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रोमियम हमें दिख रहा है ये तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बस इतना एग्जांपल देखेंगे और हम यहाँ पे रुक जाएंगे। देखो तो लिखते हैं पूरा इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये लिखा हमने x प्लस क्या होगा, ये जो है H2O कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू कितने, H2 का चार्ज क्या होता है, H2O का चार्ज होता है 0 क्योंकि वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो वो हुआ 0 प्लस ये क्या है यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू चार्ज ऑन Cl, एक Cl पे क्या चार्ज होता है, देयर इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो -1 दैट इज इक्वल टू, अब इस पे जो है ये +1 चार्ज है, तो ये हुआ 1। ठीक है, इस तरह से अब ये पूरा इक्वेशन लिखा है हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 4 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 हो गया, और ये जो 2 इंटू -1 यानी के -1 हो गया, -2 इंटू ये -2 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ x -2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये जो x है दैट इज x इज इक्वल टू 1। अब ये -2 है तो ये इधर जाएगा तो ये होगा +2, तो ये +2 हुआ, तो यानी कि कितना हुआ फाइनली हुआ 3। तो x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो गई, 3 हो गई। तो ये देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितनी है, +3 वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस क्रोमियम का वो होता है +3। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ये फॉर्मूला हम उसको अप्लाई कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए। ये कोई गिवन फॉर्मूला नहीं है, बट जस्ट फॉर टू डिटरमाइनिंग, दिस इज द वन ऑफ द ट्रिक टू you can use to determine the oxidation number. Okay,